کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے۔ میجر جنرل امجد حنیف سمیت پاک فوج کے 5 افسر اور 1 جوان شہید ہوا۔ ہیلی کاپٹر حادثہ موسم کی خرابی کے باعث پیش آیا۔ DGISPR کا ایسا بتانا ہے۔ پاک فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا۔ شہداء میں بریگیڈیئر امجد حنیف اور بریگیڈیئر محمد خالد شامل ہیں۔ میجر سعید احمد، میجر طلحہ منان اور نائک مدثر فیاض شہید ہوئے۔ خراب موسم کے باعث ہیلی کاپٹر لسپیلا میں موسیٰ گوٹ وندر کے مقام پر لاپتہ ہوا تھا۔ خراب موسمی صورتحال کے باعث حادثہ پیش آیا۔ ترجمان پاک فوج کا یہ بتانا ہے۔ جی ہاں، کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تفصیلی رپورٹ کے بعد وفاقی حکومت پارٹی اور اس کے سربراہ پر پابندی لگانے سے متعلق طے کرے گی، اور یہ بھی کہ اس پارٹی کے ارکان کو نااہل ہونا چاہیے یا نہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان پر حقائق چھپانے کی پاداش میں عمر بھر کے لیے پابندی عائد کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ سماعت کرے۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 8 سال پہ جو قوم کی نظریں جمی ہوئی تھیں ایک مقدمے کے اوپر، اور جس فیصلے کو مؤخر کرنے کے لیے 9 وکیل تبدیل کیے گئے، سینکڑوں ایڈجرمنٹس لی گئی، اور ابھی 4 دن سے مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے موقر ترین جمہوری اداروں کو اپنی چوری چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی اور KP اسمبلی سے لوگوں کے ہاتھ کھڑے کروائے گئے۔ قانون اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے، اس کے شق نمبر 1، شق نمبر 2، شق 3 اور 6 کے تحت اس طرح سے یہ پروسیجرز ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے نئے قانون کے تحت کہا کہ 2017 میں بھی یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک تفصیلی رپورٹ آئے گی، اور اس رپورٹ کے بعد وفاقی حکومت یہ طے کرے گی کہ اس پارٹی پہ پابندی اور اس کے سربراہ پہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں، اس کے اراکین اسمبلی کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے کہ نہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ یہ معاملہ سنے گی۔ تو ہم بطور سیاسی جماعت کے اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے، لیکن ہم جتھے لے کر سڑکوں پہ احتجاج کر کے باہر کھڑے ہو کے نعرے نہیں ماریں گے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آنے والا ہے۔ 3 روز سے یہ تماشا بنا ہوا تھا، 4 روز سے ٹی وی پہ صبح شام چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے، اس لیے دے کہ ہماری چوری کا جو پرچہ ہے وہ آؤٹ نہ ہو۔ جن چیزوں کو کنکلوڈ کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی جو ہے وہ امتحان ہے کہ ایک طرف آپ اس بات کے اوپر جو ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی، لی نہیں ہے، لیکن یہ ریسیویبل جو ہے وہ ایسٹ جو ہے وہ سمجھا جائے گا اور ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس لیے جو ہے وہ ساری زندگی کے نہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کون کون سی ڈکلیریشن جو ہے وہ نہیں ہوئی، کون کون سی چیز جو ہے وہ کنسیل ہوئی ہے۔ یعنی یہ ہے چوری، یہ ہے ڈکیٹی، یہ ہے وہ عمل کہ جس عمل کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس آدمی کو جو ہے وہ ساری ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نااہل ہونا چاہیے۔ ریفرنس کو جو گورنمنٹ بھیجے گی تو اس کو جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس جو ہے فل کورٹ جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ سنیں۔ ہاں، اس میں اگر وہ چاہیں تو وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ صرف وہی 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سنیں جو انہیں قابل قبول ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان کو فنڈنگ دینے والوں میں اسرائیلی، بھارتی، امریکی بھی شامل ہیں۔ بیرونی سازش کا الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ فیصلہ اگر ان کے حق میں آیا تو چیخوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ اب ادارے ان کا احتساب کریں گے۔ ایاز سعدی کہتے ہیں جلد اسپیکر بھی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے۔ فارن فنڈڈ ایجنٹ جو ہے، غیر ملکی ایجنٹ جو ہے، جس کے سپانسرز میں بھارت بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، برطانیہ بھی شامل ہے، اور کہندہ سانو ہے کہ اسی فارن سازش کی تھی۔ پیسے اے پھڑتا ہے تو الزام ساڑھے تے لگتا ہے۔ میاں نواز شریف کے اوپر 10,000 نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی۔ اس نے حلف نامہ دیا ہے، حلف نامہ جو ہے وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھایا جاتا ہے۔ زبان سوکھتی تھی مقصود چپڑاسی کا نام لے لے کے، ایتھے تے لائن لگی دیے گی، کئی مقصود چپڑاسی ہیں وہاں پہ، کہتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے، تو وہ چیخوں کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ سفر سٹارٹ ہوا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا، اب ادارے جو ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے۔ عمران خان صاحب کا ہاتھ غلے میں پھنس گیا ہے، اور یہ غلے سے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے۔
ऊपर से छापा पड़ गया। एक रेफरेंस तोशे खाना वाला भी पड़ा है। 4 तारीख तक स्पीकर नेशनल असेंबली में वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजना है। जब रेफरेंस जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो 30 दिन में उसका भी फैसला होना है। इलेक्शन कमीशन ने आज इमरान खान के झूठा होने पर मोहर जब्त कर दी। ये कहना है हनीफ अब्बासी का। लीगी रहनुमा का मजीद कहना है कि अमरीका बरतानिया में आरिफ नकवी केस की तहकीकात चल रही है। हो सकता है ये दोनों ममालिक इमरान खान को इंक्वायरी के लिए मांग लें। ऐसा हुआ तो इमरान खान को उनके हवाले कर देंगे। जी हाँ, हनीफ अब्बासी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आज इमरान खान के झूठा होने पर मोहर जब्त कर दी। अमरीका बरतानिया में आरिफ नकवी केस की तहकीकात चल रही हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले को इमरान खान के खिलाफ जराइम की तस्दीक करार दे दिया। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि चोर, झूठा, फॉरेन फंडिंग मनी लॉन्ड्रर आखिर 8 साल बाद पकड़ा गया। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं, पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फौरी इस्तीफा दें। इमरान खान ने इसराइल, भारत, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर मुल्कों से फॉरेन फंडिंग ली। आर्मी फ्रॉड यूज से खैरात नाम पर पैसे बटोरे और जालसाजी की। वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करे। नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने चेयरमैन PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि 5 साल तक हल्फ उठाकर खिलाफ कानून काम करने वाला सादिक और अमीन ठहरा। उन्होंने कहा कि अब आवाम को फैसला करना चाहिए कि चोर कौन है। इमरान खान ने अपने दौर में के इलेक्ट्रिक को खूब नवाजा। 16 बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स छुपाए गए। इंपोर्टेड हैं और ये चार्ल्स हेन्स वाले, रुमीता शेट्टी वाले ये लोकल है। आपको याद है ना वो तस्वीर खान साहब की, वो तस्वीर याद है ना जिसमें 7 नकवी साहब बैठे हुए हैं और अखबार में हेडिंग आ रही थी कि खान ने गारंटी दी है कि के इलेक्ट्रिक के मामलात हल हो जाएंगे। हो गए 3 मिलियन पाउंड पे तमाम मामलात हल हो गए। पाकिस्तान के अंदर $1 अरब की 250 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट 3 मिलियन या 2 मिलियन पाउंड में बेच दी। मैं आपसे पूछता हूं चोर कौन है? 16 बैनुल अक़वामी अकाउंट छुपाए, वो अभी भी सादिक और अमीन है। 5 साल अंडर ओथ गलत चीजें लिख के साइन करके जमा करवाते रहे, फिर भी सादिक और अमीन है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान की एक जेब में इसराइली और दूसरी में भारतीय पैसा है। इसी फंडिंग से CPAC को रोका गया। चेयरमैन PTI पर जुर्म साबित हो चुका, सजा का तयन होना बाकी है। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। खान साहब तलाशी कैसे देते? जैसे बड़े मासूम से मुंह बनाकर कहा करते थे अगर कुछ किया नहीं तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? खान साहब तलाशी नहीं देते रहे क्योंकि उनकी एक जेब में इसराइली पैसा था, दूसरे में भारतीय पैसा था। इसी पैसे से CPAC रुका है। इसी पैसे से इस पाकिस्तान में इस तरह की सियासत को फ़रोग मिला है। इसी पैसे से अलीमा बाजी के फ्लैटों से लेके खान साहब की जेब खर्चे तक चलता रहा है। जुर्म साबित हो चुका है, सिर्फ सज़ा का तयन बाकी है। 2 सज़ाएं तो बिल्कुल साफ सबको नज़र आती हैं, ताहयात नाअहली और जितने फंड्स इस्तेमाल किए हैं वो रिकवर करेगी हुकूमत पाकिस्तान। तीसरी उम्र कैद होनी है या कोई उससे ज़ायद सज़ा होनी है, सिर्फ इतना बाकी है। और खान साहब इस मुल्क में अब ये नहीं चलेगा। और आप पे तो मिसाल बिल्कुल फिट आती है, एक चोर और ऊपर से चतर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। दूसरों को चोर कहने वाला शख्स आज खुद चोर साबित हुआ। वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर तमाम इदारों को मुतहर्रिक करना चाहिए। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान ने इस मुल्क में तबाही मचाई, इस मुल्क की इकॉनमी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। इमरान खान की मुनाफत की वजह से इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हिस्ट्री चीटर शख्स है, ये कॉर्पोरेट क्रिमिनल शख्स है और जो लोग इसके साथ शामिल हैं उन सबको कानूनी सख्त से सख्त सजा दी जाए। फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत तमाम इदारों को मुतहर्रिक करे, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उधर वफाकी वजीर शाजिया मरी का कहना है कि आज साबित हो गया है कि इमरान अहमद न्याजी बैरूनी फंडिंग से पार्टी चलाता रहा। सवाल यह है कि बैरूनी फंडिंग का इस्तेमाल किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ किया गया। उनका कहना था कि इमरान खान झूठा था और झूठा रहेगा।
वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। इमरान अहमद नियाज़ी अपनी जमात को पाकिस्तान के बाहर ममनुआ ज़राओं से पैसे लेकर चलाता रहा। वो ममनुआ अकाउंट से फंडिंग के ज़रिए पाकिस्तान में किस एजेंडा पर सियासत कर रहा था। अब सवाल ये है, आज फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया है कि इमरान खान झूठा है और इमरान खान बहुत बड़ा चोर है। इमरान खान की जो साजिशी जहनीत है उसमें ये भी बात आई कि जी मैं तो पकड़ा जाऊंगा तो बेहतर ये है कि शोर मचाओ कि दूसरे लोग फॉरेन फंडिंग के अंदर मुलविस हैं। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगर शवाहिद मिलते हैं, सबूत मिलते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह कार्रवाई की जाए। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब रियासती इदारा नहीं, पीडीएम का हलीफ है। इलेक्शन कमीशन बताए कहाँ है नून लीग और पीपल्स पार्टी अकाउंट की तफसील। इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फारूक हबीब का कहना था पीपल्स पार्टी 36 करोड़, नून लीग 66 करोड़ के जराए नहीं बता सकी। मैं चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक काम तो हिम्मत करे ना, जरा वेबसाइट के ऊपर डाल दे सारे पाकिस्तानियों के लिए देखने के लिए कि तहरीक इंसाफ ने क्या क्या तफसील जमा की हुई है अपने अकाउंट्स की, और बाकी ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने क्या तफसील दी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी को शक था कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये जानिबदार है, ये एक सियासी हरीफ है, ये अब रियासती इदारा नहीं रहा, ये एक सियासी हरीफ है, ये पीडीएम के अलायंस का पार्टनर है, उन सब लोगों को ज़रूर मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ जो इस इंतज़ार में बैठे थे कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन कोई फ़ैसला करेगी जिससे तहरीक इंसाफ की जो पाबंदी लगा दी जाएगी और आज के बाद तहरीक इंसाफ का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो इतनी हिम्मत जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं हुई कि इतना को घटिया फ़ैसला दे सकें। कोशिश उन्होंने बड़ी की है, जो उन्होंने आज किया है ये सुप्रीम कोर्ट की 2017 की जजमेंट की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके अंदर कहा गया था कि तमाम पार्टियों को बराबरी की बुनियाद पे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इंशाअल्लाह ताला कल या परसों जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम इसको पिटिशन करके चैलेंज भी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ख़राब ना हो जाए, मैंने हर मामले में जो है वो पीटीआई को आगे रखना है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो लाडलों जैसा सलूक करना है। 36 करोड़ रुपए का ऐसा हिसाब है जो पीपल्स पार्टी बता ही नहीं सकी इलेक्शन कमीशन के सामने कि इसके ज़राए कौन से हैं, ये पैसा जमा करवाने वाले कौन से लोग हैं। 66 करोड़ रुपया नून लीग नहीं बता सकी कि इसके ज़राए कौन से हैं, ये 15 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़ रुपए की रकूम जो है वो किसने डाली हैं। बुनियादी तौर के ऊपर इस सारे मामले के अंदर पीटीआई को सिंगल आउट किया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस के ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं की गई। तो मैंने तो इनको पहले भी चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन की तो बायसनेस अपनी जगह के ऊपर मौजूद है,